I greet every one of you in the mighty and matchless name of our Lord and Savior, Jesus Christ. मैं आप सभी को सर्व सामर्थी और अतुल्य प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपको मैं धन्यवाद कहता हूँ। And first of all, I would like to magnify the name of the Lord who has brought me here to share the word of God and also to have fellowship with precious people. और परमेश्वर यहाँ पर मुझको लेकर आकर वचन बांटने के लिए और आप सब लोगों के साथ संगति करने के लिए यहाँ पर लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करना चाहता हूँ। And also appreciate Pastor Paul Z, who is in our midst. He's a young pastor. He has a burden and passion for the souls. I must say that you're not lucky people, but the thing is, you're really blessed people to have such a young person, young pastor in our midst. और आपके बीच में जो जवान पास्टर है, मैं सच में उनका अभिनंदन करता हूँ। आप लोग नसीब वाले नहीं हो पर आशीषित लोग हो, ऐसा सेवक आपके पास है। And also I'm very much thankful and grateful to Senior Pastor Sundar Rao ji, who is in our midst. Thank you so much for your kind words, Pastor. और पास्टर सुंदर राव आया जी का भी मैं धन्यवाद करता हूँ, आभार व्यक्त करता हूँ, उनके अद्भुत शब्दों के लिए, वचनों के लिए भी मैं धन्यवाद करता हूँ। Though he senior man is very humble person. वो बहुत ही सीनियर है तो भी बहुत नम्र है वो। And also I am very much thankful and grateful to the Lord who has brought Sister Teresa in our midst to have fellowship. और सिस्टर ट्रीजा जी को परमेश्वर ने हमारे बीच में लेकर आया, इसलिए मैं परमेश्वर का धन्यवाद She करता is हूँ। serving the Lord in Uttarakhand. वो उत्तराखंड में परमेश्वर का सेवकाई करती And है also having ministry in Dubai and the Middle East. और दुबई में और मिडिल ईस्ट में यानी सऊदी अरेबिया वो प्रांतों में वो अच्छा सेवकाई करती है। In coming forth days, he is going to teach in our Bible college. और आने वाले दिनों में हमारे बाइबल कॉलेज में वो सिखाएगी। See, we are working as a team. देखो हम लोग एक टीम के समान काम कर रहे हैं। And really, I am very much grateful and thankful to Pastor Esther, who has invited me to share the word of God among the pastors and leaders in the school of Holy Spirit. और पास्टर एस्तर जी का भी मैं धन्यवाद कहता हूं, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर पास्टर्स और लीडर्स के कॉन्फ्रेंस में आकर परमेश्वर का वचन प्रचार करने के लिए और उनके साथ संगति मनाने के लिए उन्होंने आमंत्रण किया, इसलिए मैं उनका धन्यवाद कहता हूं। And I can't stop appreciating Pastor Paul because Jesus said one word: without me you can do nothing. In the same way, Pastor Paul, without him we can't do anything. जैसे कि यीशु मसीह कहता है कि मेरे सिवा तुम लोग कुछ नहीं कर सकते हो, तो उसीलिए पास्टर पॉल के बिना भी हम लोग कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैं उनका अभिनंदन करता हूँ। Glory to God, He has given us like a mouthpiece in our life. और हमारे जीवन में परमेश्वर ने उनको एक हमारा मुख जैसा दिया है, हमारा आवाज जैसा दिया है हमारे जीवन में। Day before yesterday, today, He did wonderful interpretation. और परसों, कल और आज 3 दिन अद्भुत ट्रांसलेशन अनुवाद उन्होंने किया है। And blessed be the name of the Lord. और परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। But I know one thing, that our labor in Christ, it won't be vain. और मैं जानता हूँ एक बात, मसीह में हमारा परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं होगा। When we read in the book of Ecclesiastes, हम लोग है ना सबोपदेशक की किताब में हम पढ़ते हैं, Solomon says about so many things about under the sun on the earth what's happening. और सालोमन जो है सूरज के नीचे और पृथ्वी में बहुत कुछ देखता है क्या हो रहा है बोलकर। Sometimes it may be our education or position. सब कभी कभार हमारा पढ़ाई का स्थिति होने दो, Maybe our jobs or money or name and fame. चाहे हमारा नौकरी होने दो, पैसा होने दो, नाम होने दो या होदा होने दो। Bible says everything is vain. It is written in the book of Ecclesiastes. और सबोपदेशक की किताब में लिखा गया है कि सब कुछ व्यर्थ है। But the Paul apostle says, पर प्रेरित पौलुस कहता है our labor in Christ, it won't be vain. पर प्रभु यीशु मसीह में हमारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होगा। Amen. आमीन। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। And also I can't stop appreciating Zoe, who is in our midst. और हमारे बीच में जोए जो हमारे बीच में है, उनका अभिनंदन करे बिना मैं नहीं रह सकता हूँ। All these pastors and leaders in the school of the Holy Spirit is working like robo.
पूरा ये 3 दिन का होली स्पिरिट कॉन्फ्रेंस में एक रोबोट के तरह वो काम कर रहा था। May the good God bless this young man. और भला परमेश्वर इस जवान व्यक्ति को आशीष करे। Amen. Once his name was Sai, एक पहले उनका नाम साई था and I only baptized him. और 2 years मैंने back. उनका बपतिस्मा किया है I name him as Zoe. और मैंने उनको जोए करके नाम दिया है। It's not English name; it is Greek name. वो इंग्लिश नाम नहीं है, वो यूनानी ग्रीक नाम है। वो Zoe means life of God. जोए यानी परमेश्वर का जीवन। He is carrying God's life. ये जो है परमेश्वर का जीवन को लिए चल रहा है। Amen. God is Amen. going to make him as in coming forth days. He is a great leader. और आने वाले दिनों में बड़ा अगुवा बनेगा। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। And we will be working together as a team. और हम लोग है ना मिलकर एक टीम के समान काम करेंगे। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। As I was waiting in the presence of God, God gave me specific word to share with you this evening. और जैसे मैं परमेश्वर के उपस्थिति में बाट जो रहा था, परमेश्वर ने मुझको एक अच्छा विशेष वचन मुझको दिया ध्यान करने के लिए। Though I have been serving the Lord more than 40 years, 40 साल से भी ज्यादा मैं परमेश्वर के सेवकाई कर रहा हूँ। God has given me so many wonderful messages. परमेश्वर ने बहुत सारे अद्भुत संदेशों को मुझको दिया है। But wherever I go, whether it may be small meeting or big meeting, मैं जहाँ कहीं भी जाऊँ, चाहे वो छोटा सभा होने दो, बड़ा सभा होने दो, I don't want to speak anything according to my will. मैं मेरे मन के हिसाब से, मेरी इच्छा के अनुसार मैं प्रचार नहीं करना चाहता हूँ। Whatever Holy Spirit God says, जो कुछ भी पवित्र आत्मा परमेश्वर कहता I है, would like to speak. मैं वही कहना पसंद करता हूँ। Knowing that according to Romans chapter 8 verse 14, और रोमियो का पत्री 8वां अध्याय 14वें वचन के अनुसार, जैसे कि हम जानते हैं, those who led by the Spirit of God, they are called children of God. जो कोई भी पवित्र आत्मा के द्वारा चलाए चलते हैं वे परमेश्वर के पुत्र हैं। And also the Bible says, और बाइबल ऐसा भी कहता है, kingdom of God not only in words but in deeds. और परमेश्वर का राज्य केवल बातों में नहीं पर कामों में है। I would like to teach and preach about the kingdom of God. मैं परमेश्वर के राज्य के बारे में सिखाना और प्रचार करना चाहता हूँ। Wherever I go, I want to introduce king and kingdom. और जहाँ कहीं भी मैं जाता हूँ, मैं राजा का और राज्य का मैं परिचय देता हूँ। When Jesus is king means he has a kingdom. जब यीशु राजा है तो उनके पास राज्य भी है। Amen. आमीन। Bible says, बाइबल कहता है, Jesus said, the kingdom of God is in our midst. और बाइबल कहता है कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। Many times we think like this. और बहुत बार हम लोग इस तरह से सोचते हैं, Whether we may live 60 or 70, 80 or 100 years, one day I will die, then I will go to the kingdom of God. और चाहे मैं 60 साल, 70 साल, 80 साल, 100 साल जीऊं, तो भी अगर मैं मर जाऊंगा तो परमेश्वर के राज्य में चले जाऊंगा। But that is true. पर वो सच है। You know, God has given wonderful privilege and opportunity to enjoy the kingdom of God as we are living on the planet of this earth. पर परमेश्वर ने ना एक अद्भुत अनुभव हमको दिया है कि हम लोग है ना परमेश्वर का राज्य को मरने के बाद नहीं, पर इस पृथ्वी में हम लोग जिंदा रहने पर भी उनके राज्य को हम लोग अनुभव कर सकते हैं। You know what's the kingdom of God? क्या आप जानते हो परमेश्वर का राज्य क्या है? Kingdom of God not either eating or drinking. और परमेश्वर का राज्य खाना या पीना नहीं है। What's the kingdom of God? परमेश्वर का राज्य क्या है? Righteousness, धार्मिकता, peace, शांति, oh joy in the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा में आनंद। Bible says, बाइबल कहता है, the joy of the Lord is our strength. परमेश्वर में आनंद करना ही हमारा सामर्थ है। The book of Philippians chapter 4 verse 4 to 7 says, और फिलिपियों का पत्री 4 अध्याय 4 से 7 में हम देखते हैं, and Paul the apostle has written this Philippians letter. और प्रेरित पौलुस ये फिलिपियों का पत्री को लिखा है। Paul the apostle has written this letter to the Philippian church. और फिलिपियों के कलीसिया में, फिलिपियों का कलीसिया को प्रेरित पौलुस ने ये पत्री को लिखा है। And also it is called the prison epistle. और इस तरह से भी वो कहता है कि जब वो बंदी गृह में था उस समय में लिखा गया पत्री था। As Paul was arrested for sake of gospel, और सुसमाचार के निमित्त जैसे कि पौलुस कैद किया गया as he था was kept in the prison, और वो बंदी गृह में रखा गया था, from there he wrote this letter. और वहां से उन्होंने ये पत्री को लिखा है। Rejoice in the Lord. Again I say rejoice. प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंद करो। Even though he gone through the negative situations, circumstances in the prison, he would write to the Philippian church to rejoice. Again I say rejoice. वो नकारात्मक परिस्थितियों से
वो हालातों से गुजर रहा था, तो भी उस समय में वो परिस्थितियों में वो कहता है और पत्री में इस तरह से लिखता है कि प्रभु में आनंद करो। मैं फिर से कहता हूँ, प्रभु में आनंद करो। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। And glory to God that today we are alive. और परमेश्वर का महिमा हो कि हम लोग आज जिंदा है। We did not die during the COVID time. और कोविड के समय में हम लोग मरे नहीं। We did not met with accident. Though we met with accident, we didn't die. हमको कुछ दुर्घटना नहीं हुआ, यदि हुआ तो भी हम लोग मरे नहीं। Why? Because क्यों? कारण the क्या है? God of Israel will not sleep nor slumber. क्योंकि इजराइल का परमेश्वर वो ना कभी सोता है ना कभी ऊँघता है। Why we are alive? क्यों हम लोग जीवित हैं? Many great people died in the time of COVID. और बहुत सारे बड़े बड़े लोग कोविड के समय में मर गए। Highly educated people. और अच्छा पढ़े लिखे लोग भी मर गए। Oh, richest people in the world. और संसार में धनवान लोग भी। And people those who has name and fame. और जिनको अच्छा नाम था, होदा था। Famous singers like S.P. Balasubramaniam. एसपी बालासुब्रमण्यम जैसे फेमस सिंगर। And so many people died. और बहुत सारे लोग मर गए। Even film actors and politicians. और फिल्म एक्टर्स भी और पॉलिटिशियंस भी मर गए। So-called people, they died. ऐसा कहलाने वाले लोग भी मर गए। Why you and me alive today? पर आप और मैं क्यों हम लोग आज जीवित हैं? We are not at all greater than the people already who passed away. और जो कोई भी पहले से मर चुके हैं उनसे हम लोग बेहतर नहीं हैं। Why we are alive? क्यों हम लोग जीवित हैं? Still God has a plan and purpose in our life. क्यों परमेश्वर हमारे जीवन में योजना को रखता है और उद्देश्य को रखता है? Why we are alive? क्यों हम लोग जिंदा हैं? We need to finish our assignment. क्योंकि हम लोग है ना हमारे काम को पूरा करना है। God has given you and me the great assignment. परमेश्वर ने आपको और मुझको बड़ा काम दिया है। What's the assignment? क्या काम है? The assignment of the kingdom of God. और परमेश्वर का राज्य का काम है वो। Because God wants to build His kingdom through you and through me. और क्योंकि परमेश्वर अपना राज्य को आपके द्वारा और मेरे द्वारा बनाना चाहता है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। As I'm praying, God gave me one specific and prophetical word about the church and ministry. और जैसा मैं प्रार्थना कर रहा था कि परमेश्वर इस कलीसिया के लिए, सेवकाई के लिए एक भविष्यवाणी का वचन दो बोलकर। You know what is the prophetical word? आप जानते हो वो भविष्यवाणी का वचन क्या है? And end should greatly increase. आपका जो अंत है वो बहुत अधिक बढ़ोतरी में रहेगा। आमीन। That's word from the Lord. ये परमेश्वर के ओर से ये वचन है। And from yesterday onwards, I was kept on praying and praying and praying. और कल से मैं प्रार्थना कर ही रहा था, प्रार्थना कर रहा था। And God gave me this word. और परमेश्वर ने मुझको ये वचन दिया। And end should greatly increase. और तुम्हारा जो अंतिम दशा रहेगा वो बहुत ज्यादा अधिक होगा, बढ़ेगा। You know, this place is not enough for the congregation. देखो ये जगह है ना लोगों के लिए पूरेगा नहीं। Now you may be looking like a small congregation. आज आप देख सकते हो कि ये छोटा सा सभा है। You may take it as a prophecy. आप ये भविष्यवाणी के रूप में ले सकते हो। I'm not prophesying over you with emotion. मैं कुछ इमोशन से, भावनाओं से मैं आपके ऊपर भविष्यवाणी नहीं कर रहा Right now हूँ। the presence of God is upon me. अब भी परमेश्वर का उपस्थिति मुझ पर है। Right now the spirit of the Lord is upon me. अब भी परमेश्वर का आत्मा मुझ पर है। Lord says, परमेश्वर कहता है, you know, God is going to increase the congregation. परमेश्वर इस सभा को बढ़ाने वाला है। Increase your personal life. आपका व्यक्तिगत जीवन को बढ़ाने God वाला is है। going to increase your families. परमेश्वर आपके परिवार को बढ़ाने वाला है। God is going to increase the church. परमेश्वर इस कलीसिया को बढ़ाने वाला है। His ministry will be increased. ये सेवकाई बढ़ते ही रहेगा। Even I could see in my spirit. मैं अपने आत्मा में देख पा रहा हूँ। God is going to bring the people from this northern place and south place and east place and west place. परमेश्वर उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम से लोगों को लेकर आने वाला है। In my spirit, मैं आत्मा में I could see the multitude of the people. मैं बहुत बड़ा झुंड को, भीड़ को देख रहा हूँ मैं। Coming forth days, God is going to expand the ministry. आने वाले दिनों में परमेश्वर इस सेवकाई को बढ़ाने वाला, फैलाने वाला है। And God is going to give you the special place to build the church. और परमेश्वर आपको विशेष जगह, स्थान देगा बड़ा चर्च को बनाने के लिए। Miraculously, God is going to give you the place. अद्भुत रीति से परमेश्वर वो जगह देगा तुमको। I could see the multitude of the people here. मैं यहाँ पर लोगों का बड़ा भीड़ को देख रहा हूँ। Because this place is not enough. क्योंकि ये जगह पूरा नहीं है। And end should greatly increase. और
बाद में जो है बहुत बड़ा बढ़ोतरी होगा। Amen. आमीन। Blessed be the name of the Lord. और प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। Let me share some of the things from the Word of God. परमेश्वर के वचन से कुछ बातों को मुझको बांटने दो, कहने In दो। order to see the great increase, और बड़ा बढ़ोतरी को, उन्नति को देखने के लिए we need to follow the scripture. हम लोग है ना वचन का पालन करना चाहिए। Lord will never ever work the miracles beyond the scriptures. और परमेश्वर वचन के बिना कोई भी अद्भुत कामों को नहीं करता है। Job chapter 8 verse 5 to 7. और अय्यूब का किताब 8वां अध्याय 5वां वचन से 7वां वचन, There it says like this. और वहां पर इस तरह से कहता If है, thou wouldst seek unto God betimes and make thy supplication to thy Almighty, if thou wast pure and upright, surely now he would awake for thee and make the habitation of thy righteousness prosperous. Verse 7. Though thy beginning was small, yet thy later end should greatly increase. आमीन। तो भी यदि तू आप ईश्वर को यत्न से ढूंढता और सर्वशक्तिमान से गिड़गिड़ा कर विनती करता, और यदि तू निर्मल और धमी रहता, तो निश्चय वह तेरे लिए जागता और तेरी धार्मिकता का निवास फिर जो का त्यों कर देता। चाहे तेरा भाग पहले छोटा ही रहा हो, परंतु अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती है। Yet thy later end should greatly increase. This is the promise of God from the scripture. अंत में तेरी बहुत बढ़ती होती, ये परमेश्वर अपने वचन में से दिया हुआ प्रतिज्ञा है। God wants to fulfill his prophetical word, his promise in this congregation. परमेश्वर इस सभा में, इस कलीसिया में अपना भविष्यवाणी का और प्रतिज्ञा का वचन को पूरा करना चाहता है। I heard that someone told 8,000 promises are written in the word of God. मैं ऐसा सुना है कि कुछ लोग ऐसा बोले कि बाइबल में 8,000 से ज्यादा प्रतिज्ञाएं लिखे गए हैं। But whatever number it may be, चाहे वो कितने भी हो, without commandments of God, promises cannot be fulfilled. परमेश्वर की आज्ञाओं के बिना प्रतिज्ञाएं पूरे नहीं होते हैं। We need to obey the commandments of God. हम लोग परमेश्वर का आज्ञाओं का पालन करना है। Many times people used to go to the church on the December 31st. और बहुत सारे लोग है ना दिसंबर 31 तारीख को अंत के दिनों में चर्च में जाना पसंद करते हैं। Just they want to get the promises. केवल वो लोग को प्रतिज्ञा वचन पाने के लिए वो लोग जाते They हैं। go to the church to get the yearly promise. वो लोग है ना साल भर का वो प्रतिज्ञा वचन लेने के लिए चर्च में जाते हैं दिसंबर 31 को। One day I heard this story. और मैं एक दिन है ना एक कहानी को सुना मैं। You know, the husband and wife. Husband is unrepented person. एक पति पत्नी है और पति जो है वो मन फिराया हुआ व्यक्ति नहीं है, And he was bound by the alcohol spirit. और वो शराबी था और शराब के बंधन में था वो। Wife is godly woman. और पत्नी जो है वो भक्तिमान थी God fearing sister. और वो परमेश्वर का भय मानने वाले बहन थी। Regularly she goes to church. और प्रभु के कलीसिया में जाने के लिए वो लवलीन थी। And both of them, they went to the church on December 31st. और दोनों जन दिसंबर 31 तारीख को चर्च में गए। The man of the house, he will never ever go to church whole year. और वो घर का जो व्यक्ति है कभी भी है ना साल भर में चर्च में नहीं जाता था। But he wants to go to the church only on December 31st to get the promise. केवल दिसंबर 31 तारीख को जाता था ताकि है ना पूरा साल भर के लिए प्रतिज्ञा वचन ले। During the service time, both of them, they got the promises. और वो सभा के समय में दोनों जन को वो प्रतिज्ञाएं मिले। You know, wife, what kind of promise she got? और पत्नी को किस प्रकार का प्रतिज्ञा मिला आपको पता है? And she got the promise like this: you will have persecution. और उनको इस तरह से प्रतिज्ञा मिला कि तुझे सतावट होगा। You will have persecution. तुझे सतावट होगा बोलकर इस तरह से वचन उनकी पत्नी को मिला। And husband got the promise. और पत्नी को भी वो प्रतिज्ञा मिला। After going home, और घर पे जाने के बाद and husband and wife, they had a discussion about this promise. और पति पत्नी ये लोग आपस में ये प्रतिज्ञा के बारे में चर्चा कर रहे हैं। Husband asked the question, what promise you got? और पति पूछ रहा था कि क्या प्रतिज्ञा तुझे मिला? And I got the promise that you will have persecution. और उन्होंने बोला कि मुझको ऐसा प्रतिज्ञा, ऐसा वादा मिला कि तुझे सतावट होगा। Why? Because very badly she used to get beating from her husband only. क्योंकि ना उनका पति है ना उनको बहुत भयंकर रीति से मारता था। Many times she was badly beaten by her husband. और कई बार
उनका पति ने उनको बहुत भयंकर रीति से मारा था, But that is a different story. पर वो अलग कहानी है। And you know what he said? आप जानते हो कि उन्होंने क्या कहा पति ने? And husband was boasting about his promise. और उनका पति जो है अपना प्रतिज्ञा के बारे में बहुत ही ज्यादा बोल रहा था, यानी घमंड कर रहा था उसके विषय See, में। whole year you go to the church and attend the church. देख तू साल भर चर्च में जाती है और सारे सभाओं में भाग You have लेती है, got such a promise that you will have persecution. और तुझको ना ऐसा वादा मिला कि तुझे सतावट होगा। You know what kind of promise I got? तू जानती है क्या मुझको कौन सा वादा मिला, प्रतिज्ञा मिला? I got the promise that I will never leave you nor forsake you. और मुझको ना ऐसा प्रतिज्ञा मिला कि मैं तुझे ना कभी छोड़ूंगा ना कभी त्यागूंगा, Always I will come with you. हमेशा मैं तेरे साथ रहूंगा। And he misunderstood the word of God. और वो वचन को ना गलत रीति से समझा, And he was boasting about his promise. और वो जो है अपना प्रतिज्ञा के बारे में घमंड कर रहा था। Whole year you go to church, और वो चर्च में जाते वक्त but morning and evening I'll go to the alcohol shop. और शाम के समय में वो क्या करता था बोलो तो शराब के दुकान में जाता था। Always I go to the alcohol shop. हमेशा वो है ना शराब के दुकान में जाता था, And I will be roaming here and there. और इधर उधर घूम रहा था। Though I go to the alcohol shop, no, the Jesus is with me. और वो कह रहा था कि यदि मैं शराब के दुकान में मैं जाऊंगा तो अभी भी यीशु मेरे साथ में है, कहता था वो। The God's promises He will never leave me nor forsake me. क्योंकि परमेश्वर ने वादा किया है कि ना कभी मैं तुझे छोड़ूंगा ना कभी तुझे त्यागूंगा। Please listen carefully. अब कृपया करके ध्यान से सुनिए, That's not right. वो सही नहीं है। Taking only one promise and compromising with these worldly things. और एक प्रतिज्ञा को लेकर और इस संसार से समझौता करना, And more people will be satisfied by taking only one promise for whole year. और बहुत सारे लोग है ना साल भर में एक प्रतिज्ञा वचन को लेकर और पूरा साल भर में तृप्त हो जाते But हैं। 8,000 promises are written in the Bible. पर बाइबल में 8,000 प्रतिज्ञाएं लिखे गए हैं। I tell you the truth. मैं आपको सच्चाई कहता हूँ, In your personal life, you want to achieve the promises of God. आपके व्यक्तिगत जीवन में परमेश्वर के प्रतिज्ञाओं को आपको पाना है क्या? We need to obey the commandments of God. हम सब लोग परमेश्वर के आज्ञाओं के अनुसार चलना है, आज्ञाओं का पालन करना है। We can see the 10 commandments in the Old Testament. आप पुराने नियम में 10 आज्ञाओं को देखते हैं, And you may have questioned that do we have commandments in the New Testament? और हमको ऐसा प्रश्न आता है कि नए नियम में भी कुछ आज्ञाएं हैं क्या? Yes, we have commandments. हाँ, हमारे पास आज्ञाएं We हैं। have got 2 commandments in the New Testament. हम लोगों को नए नियम में 2 आज्ञा है। Number 1 commandment. पहला आज्ञा, Love the Lord with all your heart. अपने पूरे दिल से परमेश्वर से प्रेम करो, Love the Lord with all your mind. और पूरे मन से परमेश्वर को प्रेम करो, Love the Lord with all your strength. और परमेश्वर को पूरे बल से प्रेम करो। And second commandment, और दूसरा आज्ञा, love your neighbor as you love yourself. अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। This is the second commandment. ये दूसरा आज्ञा है। When we read these both commandments, जब हम लोग ये दोनों आज्ञाओं को पढ़ते हैं, I can have the picturization of the cross of Calvary. और मैं वो क्रूस पर जो कलवरी का क्रूस है वो पिक्चर मेरे मन में आ जाता है। Amen. आमेन। Love the Lord with all your heart. और परमेश्वर को पूरे दिल से प्रेम करो, And love your neighbor as you love yourself. और अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम करो। You know what kind of shape it has, the cross, what kind of shape it has? आप जानते हो क्रूस का आकार कैसा है? It has made, vertically and horizontally. वो क्रूस जो है, वो जो लकड़ी है क्रूस का, वो खड़ा है और आड़ा है। One direction tells about loving the Lord. और जो खड़ा है वो दिशा परमेश्वर को प्रेम करना है बताता है। Other direction tells about love the people. और दूसरा दिशा जो है आड़े में है, वो लोगों से प्रेम करना दर्शाता है। Many people says that I love the Lord, I least bother of the people. और बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि मैं परमेश्वर से प्रेम करता हूँ और किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता हूँ। That is not real love. वो सच्चा प्रेम नहीं है। Think about the ministry of Jesus Christ. और यीशु मसीह का सेवकाई के बारे में सोचिए। Wherever we read in the New Testament, जहाँ कभी हम लोग नए नियम में पढ़ते हैं, Jesus has moved with love and compassion. यीशु मसीह प्रेम से और तरस से भर गया था, हम लोग देखते हैं। Without love, we can't do anything. और प्रेम के बिना हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं। Amen. In this world, so many kings, they overcame the world, they overcame the wars.
और इस संसार में बहुत सारे राजाओं ने बहुत सारे राज्यों को जीते, बहुत सारे युद्धों को जीते, by holding the, weapons, by holding the swords. और अपने हाथ में हथियार को रखकर वो लोगों ने जीत पाए, But they could not impact the world. पर वो लोग इन्हें संसार को प्रभावित नहीं कर पाए। When Jesus came to this world as a king, जब यीशु मसीह इस संसार में राजा के समान he आया, did not carry any kind of weapons. वो अपने हाथ में कोई भी हथियार को नहीं रखा, He did not carry any kind of sword. वो कोई भी अपने हाथ में तलवार को नहीं रखा। यीशु Only he मसीह ने carried the love of God. केवल परमेश्वर का प्रेम को लिए चला। He carried the love and compassion. वो लोगों की और प्रेम और दया को रखकर चला। That's the reason though Jesus Christ hanged on the cross 2025 years ago. और उसी का कारण है कि यीशु मसीह 2025 साल पहले क्रूस पर चढ़ा। Through the death of Christ, और यीशु मसीह के मृत्यु के द्वारा, by the resurrection of Christ Jesus, और यीशु मसीह के पुनरुत्थान के द्वारा whole world is being impacted. और पूरा संसार प्रभावित हुआ। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। Hallelujah. हालेलुया। We need to obey the commandments of God. हम लोग परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करना है। Let me tell you my brief testimony. मेरा संक्षिप्त में गवाही बोलना I चाहता was हूँ। born and brought up in a Hindu family. मैं हिंदू परिवार में मेरा जन्म हुआ था, My father was working as education officer. और पास्टर जी के पिताजी जो है एजुकेशन ऑफिसर का काम I am करते थे, only son for my parents. Of course, I got two sisters. और पास्टर जी को 2 बहनें और अकेले बेटे हैं। And as I was born and brought up in a Hindu family, और जैसे कि मेरा जन्म और पलना बढ़ना हिंदू परिवार में to हुआ, cut short the story, और कहानी को मैं थोड़ा कम करने के लिए, I used to follow every kind of heathen things. और मैं सारे बुरे कामों का पीछा करता था, And I was bound by alcohol spirits. और मैं शराबी था, उस बंधन में था, I was bound by spirit of nicotine. और मैं ना नशा कर यानी चरस गांजा लेता था मैं, In the age of 14, I started taking drugs. और 14वां साल में मैं ड्रग्स लेता था, In the age of 14, I started smoking और 14वां साल में मैं सिगरेट पीना शुरू किया, because of lack of peace. क्योंकि मुझ में शांति नहीं था। Every time I used to smoke and drink and smoke and drink. हमेशा मैं सिगरेट पीता था और दारू पीता था। I know one day what happened. मैं जानता हूँ एक दिन क्या हुआ, I was planning to commit suicide और एक बार मैं आत्महत्या करने के लिए तैयार हो गया, because of my terrible sins. क्योंकि मेरे भयंकर पाप की वजह से There was no peace in my life. मेरे जीवन में शांति नहीं था, I was planning to run towards train track. और रेल के पटरी के पास जाने के लिए मैं सोच रहा था। Then I heard about gospel. और बाद में मैंने सुसमाचार को सुना, Then before my death, और मरने से पहले let me try for Jesus. एक बार है ना यीशु के बारे में मैं कोशिश करूं। I took a decision and let me try for Jesus. मैं ऐसा निर्णय लिया कि एक बार है ना मैं यीशु को चक्कर देखूंगा, प्रयत्न करूंगा मैं यीशु के विषय में। I know I went back to my home and I went to the top of my terrace. और मैं घर पे गया और टेरिस के ऊपर चले गया, छत के ऊपर गया। It was 1983 June 16th. और वो 1983 जून 16वां तारीख था, Night at 8 o'clock. और रात में 8 बजे I was waiting for the train to come which goes from Tirupati to Hyderabad. और तिरुपति से हैदराबाद जाने वाला वो ट्रेन का इंतजार कर रहा था It मैं, comes at 9 o'clock, और वो 9 बजे आता है, but 8 o'clock I was praying. और 8 बजे मैं प्रार्थना कर रहा था। My prayer was very simple. और मेरा प्रार्थना बहुत साधारण था। I prayed like this. मैं इस तरह से प्रार्थना किया, Jesus, if you are a real God, यीशु यदि आप सच्चा परमेश्वर हो, if thine existence is there, यदि आप अस्तित्व में हो, and change my heart, यदि मेरा हृदय को बदल दोगे तो, otherwise I am going to die. नहीं तो मैं मर जाऊंगा। When I prayed like this, जब मैंने इस तरह से though प्रार्थना it किया, was simple prayer, it was powerful. वो चाहे वो साधारण प्रार्थना हो, पर वो बहुत ही शक्तिशाली प्रार्थना था। When I prayed like this, और मैंने इस तरह से प्रार्थना किया, suddenly God gave encounter to me. और परमेश्वर अचानक से मुझसे मुलाकात करने के लिए आया, I had encountered with Jesus Christ. और यीशु मसीह से मेरा मुलाकात हुआ। The Lord who gave encounter to the Saul और परमेश्वर साउल को
मिला, to change as a Paul, उसको पौल में बदलने के लिए, same God gave encounter to the Venkat Raghunath और वही परमेश्वर वेंकट रघुनाथ से आकर मुलाकात to किया change as a Daniel. ताकि दानियल में बदल दे। Amen. आमीन। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद When हो। I started praying like this, मैं इस तरह से जब प्रार्थना करना शुरू I किया, could see Jesus Christ face to face. मैं यीशु मसीह को, उनका चेहरे को आमने सामने देख पा रहा It's था। not my imagination or vision, dream. No, no, no. ये मेरा कल्पना या फिर मेरा दर्शन या फिर सपना नहीं है। Right now, as I am seeing Pastor Paul, जैसे कि मैं पास्टर पॉल को देख रहा हूँ, same way in the same manner, और उसी रीति से I could see the Jesus Christ. और मैं यीशु मसीह को देख पा रहा था, I had the visitation of Jesus Christ. और यीशु मसीह का दर्शन हुआ, I had encounter with Jesus. और यीशु मसीह से मैं मिला। I saw Jesus face to face who hanged on the cross of Calvary. मैं यीशु मसीह को आमने सामने देखा जो क्रूस पर चढ़ा हुआ था, And also I saw his precious blood. और मैंने उनका बहुमूल्य लहू को देखा। Oh, his precious blood was coming upon my dirty clothes. ओ उनका जो बहुमूल्य लहू है मेरे गंदे कपड़े के ऊपर आ रहे थे, I was in a pathetic condition. और मैं भयंकर परिस्थिति में था, I was in miserable condition. और मैं बहुत परेशान परिस्थिति में No था। peace in my life. मेरे जीवन में शांति नहीं I था। want to kill myself. मैं अपने आप को मारना चाहता था, I want to commit suicide. मैं आत्महत्या करना चाहता था। At that time, उस समय में Jesus gave me encounter. यीशु ने मुझसे आके मिला। I saw his precious blood on the cross. मैं क्रूस पर उनका बहुमूल्य लहू को देखा, His precious blood was coming upon my dirty clothes. और उनका बहुमूल्य लहू मेरे गंदे कपड़े के ऊपर आ रहे थे। And I thought like this, और इस तरह से मैंने सोचा, when his precious blood is falling upon my dirty clothes, जब उसका बहुमूल्य लहू मेरे गंदे कपड़े के ऊपर आप पड़ेंगे, I thought like this, और मैंने इस तरह से सोचा, all my dirty clothes are going to turn into red color. मेरा सारे गंदे कपड़े जो है वो लाल कलर के हो जाएंगे बोलकर मैंने सोचा, But instead of turn into red color, पर वो लाल कलर के बजाय all my dirty clothes, मेरे सारे गंदे कपड़े, all my sinful clothes, मेरे सारे पाप से भरे हुए कपड़े, all my filthy clothes, सारे मेरे अपवित्र कपड़े, all my sinful clothes, मेरे सारे पाप से भरे हुए कपड़े turn as a white clothes. वो सब सफेद कपड़े बन गए। When Jesus came into my heart, जब यीशु मेरे दिल में आया, I tell you the truth, मैं आपको सच्चाई कहता young हूँ, men and young women, और जवान पुरुष और जवान स्त्री, I know that many people, how much they are going through, they are struggling with sin. मैं जानता हूँ कि बहुत सारे लोग, जवान लोग है ना, पाप से लड़ रहे हैं, संघर्ष कर रहे हैं। When Jesus came into my heart, जब यीशु मेरे दिल में आया, I did not struggle myself to leave the sin. मैं पाप को छोड़ने के लिए मैं लड़ा नहीं, मैं I did not struggle myself to leave the smoking. और वो सिगरेट छोड़ने के लिए मैं कुछ संघर्ष नहीं I किया, didn't struggle myself to leave the alcohol. और शराब छोड़ने के लिए मैं लड़ा नहीं। मैं Once Jesus came into my heart, एक बार जब यीशु मेरे दिल में आ गया, all my sins rolled away. मेरे सारे पाप निकल गए, All my sins rolled मेरे away. सारे पाप निकल गए, Rolled away, rolled away, rolled away. All my sins rolled निकल away. गए, निकल गए, निकल गए, मेरे सारे पाप निकल गए। I became a new creation. मैं नई सृष्टि बन गया। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। Then I understood about Jesus Christ. तब मैं यीशु मसीह को मैं समझा अच्छी तरह। Jesus Christ is not a God of religion. यीशु मसीह कोई धर्म का परमेश्वर नहीं है, He is life-changing God. वो जीवन को बदलने वाला He परमेश्वर is है। life-changing God. वो जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है। Whosoever comes to Jesus, जो कोई भी यीशु के पास आते their हैं, life will be changed. उनका जीवन बदलता है, Their life will be transformed. उनका जीवन रूपांतर होता है। Such a way God has changed my life. और उस रीति से परमेश्वर मेरा जीवन को बदल दिया। One day I was praying in mountain area. और एक पहाड़ी क्षेत्र में मैं जाकर प्रार्थना कर रहा था। You know, my father, my mother, my father especially, though he was working in the education department, he used to act like an army man. और पास्टर जी के जो पिताजी एजुकेशन ऑफिसर थे, काम करते थे, पर है ना वो आर्मी मैन की तरह वो रहते थे। You know, he said like this one day. उन्होंने इस तरह से कहा एक दिन, So if you accept Jesus, it's okay. It's up to your person.
but you must not go out and preach the word. तो उन्होंने कहा कि तू यीशु मसीह को अंगीकार किया है, बात ठीक है, वो तेरा व्यक्तिगत विषय है, पर तू बाहर जाकर सुसमाचार प्रचार नहीं करना है करके बोला। If you want to serve your God, if you want to serve your God, यदि तुझे तेरा परमेश्वर का सेवा करना है, and my father said, this is not right place for you. ये तेरे लिए सही जगह नहीं है, Door is open. तेरे लिए दरवाजा खुला है, Get out from my house. मेरे घर से बाहर निकल जा बोला। I was mercilessly thrown out from my family in the age of 19. और बिना दया के, बिना रहम के मेरे घर से मैं बाहर निकाला गया, ढकेला गया मैं। No proper food to eat. उस समय में सही भोजन नहीं था खाने No के लिए, proper clothes to wear. और सही कपड़े नहीं थे पहनने के लिए, No shelter to live. और No proper shelter. और अच्छा शेल्टर नहीं था रहने के लिए। That was my condition. वो ऐसा मेरा परिस्थिति था, I gone through so much. और मैंने बहुत कठिन I परिस्थिति have से gone गया, through so much. बहुत सारा कठिन परिस्थिति से गया मैं। You know, when people give just 2 rupees offering, देखो लोग है ना सिर्फ 2 रुपया दान देते थे, when they give 5 rupees, लोग है ना जब 5 रुपया दान देते थे। you know, I never beg anyone. I never ask for money. देखो मैं अभी तक किसी से मैं भीख नहीं मांगा नहीं पैसा When the किसी people से। give something, जब लोग है ना कुछ भी देते हैं, sometimes I used to buy the biscuit packet. और कभी कभार है ना मैं बिस्किट पैकेट्स को खरीदता था, And I used to eat half of the biscuit packet. और मैं आधा बिस्किट पैकेट को खाकर Half I used to keep like that. और आधा जो है मेरे जेब में वैसे ही रखता था, And whole day we used to serve the Lord. और पूरा दिन परमेश्वर का सेवकाई करता था। And as a young man, you know, when rest of the friends, when they go to their houses, और जवान लोग है ना, जब है ना वो लोग रेस्टोरेंट्स में जाते हैं, whole day we used to serve the Lord. और पूरा दिन हम लोग परमेश्वर का सेवकाई करते थे। During the sunset time, और संध्या के समय में, शाम के समय when में, it gets dark, जब है ना रात होता था, all my friends used to go their houses. वो लोग सब लोग है ना अपने घरों में जाते थे, मेरे As a सारे young man, I दोस्त too लोग। want to go to my house. और मैं जवान होने के नाते मैं भी मेरा घर में जाने को सोचता था, But चाहता था, my father, he doesn't want to allow me. पर मेरा पिता ने मुझको घर में आने नहीं दिया। You know what I used to do? मैं क्या करता था पता है? So I used to eat half of the biscuit packet. मैं आधा बिस्किट पैकेट को खाता था। I used to sleep in the bus stands and railway stations. मैं बस स्टैंड में और रेलवे स्टेशन में सोता था। That was my condition. वो मेरा परिस्थिति था। During the winter season. और जब निवेदन के प्रार्थना विनती के समय, During the winter season. सॉरी, ठंडी के मौसम में, And no blanket to cover myself. और अपने आप को मैं मुझको ढांपने के लिए, ओढ़ने के लिए चादर नहीं थे। And at that time, और उस समय में I used to feed the dogs. मैं ना कुत्तों को मैं खिलाता था। And you know, 4 dogs became my friend. आप जानते हो क्या, 4 कुत्ते मेरे दोस्त बन गए। I used to feed the dogs with biscuits. और कुत्तों को ना मैं बिस्किट्स खिलाता था। You know what happened? आप जानते हो क्या हुआ? During the winter time, when I don't have blanket to cover myself. जब ठंड के मौसम में मेरे पास है ना कुछ कंबल नहीं थे ओढ़ने के Whenever लिए, these dogs see me, जब भी वो कुत्ते मुझको देखते they थे, used to shake their tail like this. वो लोग है ना अपने पूंछ को कुत्ते ऐसे हिलाते थे, They used to come near to me. वे अपने मेरे पास आते थे। I used to sleep in the midst of the dogs. मैं कुत्तों के बीच में मैं सोता था। When I sleep near to the dogs, जब मैं कुत्तों के बाजू में सोता था, I used to get warm from the dog's body. और वो कुत्ते के शरीर से मुझको गर्माहट आता था। That was my life. वो मेरा जीवन था। But God gave me promise. पर परमेश्वर ने मुझको प्रतिज्ञा One दिया। day, as I was praying in the mountain area, मैं पहाड़ी क्षेत्र में जब मैं प्रार्थना कर रहा था, actually my vision, I wanted to serve the Lord like a Sadhu Sundar Singh. साधु सुंदर सिंह जी के तरह सेवकाई करना मैं चाहता था। As I was praying in the mountain area, और जैसे मैं पहाड़ी क्षेत्र में प्रार्थना कर रहा था, God started showing me the vision. परमेश्वर ने मुझको ना दर्शन दिखाना शुरू I saw the किया। various flags of the world. मैं दुनिया के बहुत सारे झंडों को देखा, मैंने झंडा को देखा। Then I asked the Holy Spirit, और मैंने पवित्र आत्मा से Lord, पूछा, what's the meaning of this vision, Lord? ये दर्शन का मतलब क्या है प्रभु? You know what Lord said? प्रभु ने क्या कहा आपको पता है? And get ready yourself. और कहा कि तू अपने आप को तैयार कर I'm ले, going to take you to the nations. मैं तुझे ना बहुत सारे देशों में लेकर I'm जाऊंगा, going to take you to the nations after nations. और एक देश के बाद दूसरे देश में मैं तुझको लेकर ही जाते रहूंगा। Lord took me to the 22 countries in the world. परमेश्वर ने मुझको 22 देशों में लेकर गए इस दुनिया Blessed be में। the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। When I started my ministry, even I didn't have my own bicycle. जब मैं सेवकाई को शुरू किया, मेरे पास है ना साइकिल नहीं था।
God gave me the motorbike. परमेश्वर ने मुझको मोटर बाइक दी। Again, He gave me so many motorbikes. परमेश्वर ने बहुत सारे बाइक्स को दिया। God blessed me with four-wheelers. परमेश्वर ने मुझको 4 4 व्हीलर गाड़ियों से आशीष किया। Now I got the, the two four-wheelers. और अभी मेरे पास है ना 4 व्हीलर्स है और 2 4 व्हीलर्स है। And I got Innova now. और मेरे पास Yeah. इनोवा है। Now I am praying for the Fortuner actually. अभी मैं फॉर्च्यूनर के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद What I हो। am saying, material things are nothing. मैं क्या कह रहा हूँ, ये पृथ्वी संबंधित जो वस्तुएं कुछ भी नहीं है। God can provide anything. परमेश्वर कुछ भी दे सकता है। Because all wealth belongs to God. क्योंकि सारा जायदाद और सारा संपत्ति परमेश्वर का है। All riches belongs to God. और सारा ऐश्वर्य परमेश्वर का है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। And as I was praying for the Bible college land, और बाइबल कॉलेज का जमीन के लिए मैं प्रार्थना कर रहा and था। 48 hours we fast and pray. और 48 घंटे हम लोग उपवास रहकर प्रार्थना किए। I had went to Bethesda, Coimbatore. और मैं कोयम्बतूर में बेतस्ता में गया। There I went and I locked myself. वहां पर मैं जाकर अपने आप को बंद करके लिया। Along with me, one more pastor also came. मेरे साथ में और एक पास्टर भी आए। 48 long hours we prayed together. और 48 घंटे हम लोग है ना एक साथ प्रार्थना किए। After 48 hours, आप जानते हो कि 48 घंटे के बाद first of all, God gave me the 2 acres of land. पहला परमेश्वर ने 2 एकड़ का जमीन दिया। And after 48 hours of prayer, और 48 घंटे का प्रार्थना के बाद someone called me like this. कुछ एक व्यक्ति ने ऐसा मुझको फोन किया। Pastor, we are going to give you 3 more acres. और उन्होंने कहा कि पास्टर मैं हमको और 3 एकड़ दूंगा जमीन आपके लिए। Now we have got 5 acres of land for Bible college. अब बाइबल कॉलेज के लिए अभी हमारे पास 5 एकड़ का जमीन है। Amen. We are going to build the Bible college there. हम लोग वहाँ पर बाइबल कॉलेज को बांधेंगे। Since 20 years we have been running the Bible college. 20 सालों से हम लोग बाइबल कॉलेज को चला रहे हैं। We equip the students all over the India. और पूरा भारत देश से हम लोग विद्यार्थियों को लेते हैं। Even we have got students from Nepal. और नेपाल से भी हमारे पास स्टूडेंट्स है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का We धन्यवाद got हो। the students from Assam and Punjab. और आसाम से पंजाब से भी हमारे पास स्टूडेंट्स And है। Karnataka. और कर्नाटक में God has given wonderful grace to equip the students. और परमेश्वर ने हमको अद्भुत अनुग्रह किया कि हम लोग है ना विद्यार्थियों को तैयार करें, Why? उनको ले। How these things will happen? ये सब कुछ कैसा होगा? Just because of obedience. केवल आज्ञाकारिता से। The Lord who called me is faithful and just. जिस परमेश्वर ने मुझको बुलाया है वो परमेश्वर विश्वास योग्य है और धर्मी है। I may thrown out from my house. मैं अपने घर से बाहर ढकेला गया होगा। And when I left my father and mother. और जब मेरे माता पिता को मैंने छोड़ दिया, When I left my sisters. जब मैंने मेरे बहनों को छोड़ दिया, All over India. और पूरा भारत देश में, Even in abroad. और बाहर गांव में भी, In European countries. और यूरोपियन देशों में भी, Australia. ऑस्ट्रेलिया में, Even in Middle East. और मिडिल ईस्ट में भी। God has blessed me with spiritual brothers and sisters. परमेश्वर ने मुझको आत्मिक भाई और बहनों से आशीष किया है मुझे। And these days God has given me the new sister. और परमेश्वर ने मुझको नया बहन दिया है, Sister Teresa. सिस्टर ट्रीजा। God has given me young brother. परमेश्वर ने मुझको जवान भाई दिया है। God has given me wonderful pastor. और परमेश्वर ने मुझको अद्भुत He has पास्टर given me दिया है। wonderful son Zoe. और परमेश्वर ने मुझको अद्भुत You are बेटा all जोई my दिया है। brothers and sisters in Christ. आप सब लोग मेरे भाई और बहन है मसीह You में। are all fathers and mothers in Christ. आप लोग सब लोग माता पिता है मसीह में। Our family is very big family. हमारा जो परिवार है बहुत बड़ा परिवार We है। have got great family. हमारे पास बड़ा परिवार है। Though we are from different places, हम लोग अलग अलग स्थानों से हो सकते, different languages. अलग भाषा होने पाए। When you and me washed by the blood of the जब Lamb, आप और मैं मेमने के लहू के द्वारा धुलते we are हैं, one family. सब लोग एक परिवार है। We are family of हम God. लोग परमेश्वर के परिवार है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। Amen. आमीन। Hallelujah. हालेलुया। We are going to see the great increase. हम लोग बड़ा उन्नति को हम लोग देखेंगे, God, बढ़ोतरी the को Lord who देखेंगे। started increase my life and ministry, परमेश्वर, जिस परमेश्वर ने मेरा जीवन को और मेरा सेवकाई को बढ़ाया है, and certainly God is going to increase Pastor Paul's ministry. और उसी रीति से, निश्चय रीति से परमेश्वर पास्टर पॉल के सेवकाई को भी बढ़ाएगा। Why? Because He is not a partial God. He is not a partial God. क्योंकि वो पक्षपाती परमेश्वर नहीं है। God is not respecter of the person. परमेश्वर किसी मनुष्य का परवाह नहीं करता। And man may see the outward appearance, और मनुष्य जो है बाहर के रूप को देखता but है, God sees the heart of the person. पर परमेश्वर है ना व्यक्ति के दिल को देखता है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। The Lord who has called me is faithful and just.
और परमेश्वर ने जिसको मुझको बुलाया है वो विश्वास योग्य और धर्मी है। When I started my ministry, जब मैंने मेरी सेवकाई को शुरू after किया that, no, till the 2000 year, और 2000 साल में amen, हमें from 83 to 2000, 83 से 83 से 2000 तक God has given me wonderful grace to preach the word all over the India. परमेश्वर ने मुझको अच्छा अनुग्रह किया कि पूरा भारत देश में वचन का प्रचार करूं। And you know, God has given wonderful grace to baptize more than 5,000 people. और 5000 से भी ज्यादा लोगों को बपतिस्मा देने के लिए परमेश्वर ने अनुग्रह किया। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। I am what I am just because of His grace. मैं जो कुछ भी हूँ केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। Nothing is there to boast myself how great I am. No, 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 no. और मेरे बारे में घमंड करने के लिए कुछ भी नहीं है, मैं कुछ भी नहीं हूँ। I am what I am just because of His grace. जो कुछ भी मैं हूँ वो केवल परमेश्वर के अनुग्रह से ही हूँ। I would like to encourage you. I don't know the spirit, the way our spirit of leading is wonderful. और मैं आपको प्रोत्साहित करना चाहता हूँ क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा का कार्य हो रहा है। The spirit of the Lord is telling me to share this testimony. और परमेश्वर का आत्मा मुझसे कह रहा है कि ये गवाही आपसे बांटूं। You know, one day suddenly I vomited blood. एक बार है ना अचानक से मैंने खून की उल्टी की My both lungs became weak. और मेरे दोनों फेफड़े जो है कमजोर हो गए थे। I used to fast 15 days and 20 days. मैं 50 दिन 20 दिन ऐसा उपवास रहता Even था sometimes 30 days. और कभी कभार 30 दिन। You know, my both lungs became weak. और मेरा दोनों जो लंग्स है फेफड़े वो कमजोर हो गए थे। Many times I vomited the blood. कई बार मैं खून की उल्टी की। You know, one day when I vomited the blood in 2021, और 2001, sorry, 2001 में जब मैं खून की उल्टी की I felt like giddiness. और मैं अपमानित फील हुआ। And when I vomited the blood, और जब मैं खून का उल्टी की at that time no one was there in my house. उस समय में मेरे घर में कोई नहीं थे। No children, no wife, and no one is there in my house. बच्चे नहीं थे, पत्नी नहीं थी, कोई भी नहीं थे। I was all alone in my house. मेरे घर में मैं अकेला था। I felt like giddiness. और सॉरी उस समय में ना मुझको चक्कर आने जैसा हुआ। And I vomited 2 glasses of blood. और मैंने ना 2 ग्लास खून का उल्टी किया मैंने। And I was, I was admitted in the hospital. और मैं हॉस्पिटल में एडमिट हो गया। Though I don't want to go to the hospital. हॉस्पिटल जाना मुझको पसंद नहीं था। And my wife and family, they forced me to admit in the hospital. और पास्टर जी की पत्नी और बच्चे जबरदस्ती हॉस्पिटल लेकर गए। And we want to know what's happening in your body. और आप जानना चाहते हो कि हम लोग जानना चाहते हैं कि आपके शरीर में क्या हो रहा है। And when I went to the hospital, doctors did the endoscopy. और जब हॉस्पिटल गया तो डॉक्टर्स लोगों ने इंडोस्कोपी किया। And they put pipe in my mouth. और मेरे मुंह के अंदर वो लोगों ने पाइप रखा। And when they checked और जब वो लोग ने my चेक किया, intestines and all, और मेरे सारे अतड़ियों को जब वो लोग ने चेक and they किया, found a tumor in my stomach और वो लोग ना मेरे पेट में एक गांठ को खोज किए। near to the esophagus. और जहाँ पर जो है ना ये नाभि है, यानी ये जो बड़ा अतड़ी होता है, Yeah. वहां पर है ना बड़ा गांठ को वो लोगों ने देखा। They found a tumor in my stomach, big lump. मेरे पेट में वो लोगों ने बड़ा गांठ को देखा। And doctor said you must go through the surgery. और डॉक्टर ने कहा कि तुझे ऑपरेशन करना है। And I was admitted in the Manipal hospital. और मणिपाल हॉस्पिटल में एडमिट थे। I was there almost 10 days. वहां पर मैं लगभग 10 दिन एडमिट था। Repeatedly, doctors did endoscopy. और बार बार डॉक्टर्स इंडोस्कोपी किए थे। And one of the Saturday, I was crying like anything. और एक शनिवार के दिन मैं बहुत रो रहा था। You know what doctor said? आप जानते हो कि डॉक्टर When ने you क्या go through the कहा? operation, you may survive hardly 3 years. यदि तुम ऑपरेशन करोगे तो 3 साल ही तुम जियोगे। Operation may success, may not success. We cannot give guarantee. Even on table also something may happen. और ऑपरेशन सक्सेस भी हो सकता है, फेल भी हो सकता है, और टेबल में ऑपरेशन करते वक्त भी कुछ भी हो सकता है। That was the doctor's report. और वो डॉक्टर्स का रिपोर्ट You know था। why I was crying in the hospital? आप जानते हो मैं हॉस्पिटल में क्यों रो रहा था? Not because of this tumor. ये पेट में का घाट के वजह से नहीं रो रहा था Not मैं। because that I vomited the blood. मैं खून का उल्टी किया था उसके वजह से नहीं रो रहा था। Not because of doctor's report. डॉक्टर्स का रिपोर्ट्स के वजह से मैं नहीं रो रहा था। Exactly, it was on Saturday. I was admitted in the hospital. वो शनिवार का दिन था, मैं हॉस्पिटल में एडमिट था। Next day is Sunday, right? और अगला दिन संडे है। I was worrying about Sunday service. मैं संडे का सभा के लिए, रविवार का सभा के लिए Because चिंता कर all रहा these था। 40 years, I never ever miss for Sunday service. क्योंकि 40 सालों में मैं कभी भी
रविवार का सभा को नहीं चुका। Not even single Sunday I never miss. मैं एक भी संडे नहीं चुका मैं। If it is Sunday, I must dwell in the house of God. यदि वो संडे है तो मैं जरूर परमेश्वर के मंदिर में वास करना चाहिए। Very recently, you know what happened? अभी हाल ही में क्या हुआ पता है When I आपको? was planning to buy the tickets to South Africa, साउथ अफ्रीका जाने के लिए मैं टिकट्स को खरीद रहा a था। traveler said like this, मैं इस तरह से यात्रा करते हुए कहा, Sir, if you can miss Sunday, the ticket will be cheap. यदि आप संडे को छोड़ोगे तो फिर आपका जो टिकट है वो सस्ता हो जाएगा Ticket will be only 90,000. और टिकट जो है केवल 90,000 होगा। If you want to reach on Sunday itself, before that, you have to pay 1,20,000. यदि तुमको संडे ही जाना है तो उस दिन है ना तुमको 1,20,000 होगा टिकट। Since I don't want to miss the Sunday, क्योंकि मुझको संडे मिस नहीं करना I है paid 30,000 rupees extra and reached South Africa. I attended the Sunday service. और 30,000 मैंने ज्यादा पैसा भरकर मैं साउथ अफ्रीका गया और संडे का सभा में मैं हाजिर हुआ। And coming back to Manipal Hospital, और फिर से मणिपाल हॉस्पिटल में मैं आने के बाद Saturday I was crying and crying. और शनिवार के दिन मैं बहुत रो रहा था। Lord, tomorrow I will be missing the Sunday service, Lord. और कल का दिन में संडे का आराधना को मैं खो चुका। For my surprise, what happened? मेरे आश्चर्य के बात में क्या हुआ मालूम है? आश्चर्य में Two of the doctors and professors, they came to me और 2 डॉक्टर्स लोग मेरे पास आए and they said like this, और उन्होंने मुझसे कहा, Oh, Mr. Raghunath, we came to know that you are evangelist from Andhra Pradesh. वो मिस्टर रघुनाथ जी, हम लोग को मालूम पड़ा है कि आप आंध्र प्रदेश से सुसमाचार प्रचारक हो। As a doctors and professors, we are gathering in this hospital premises, और medical college premises. और डॉक्टर्स और प्रोफेसर जो है वो हॉस्पिटल के क्षेत्र में, हॉस्पिटल के प्रांत में वो लोग इकट्ठा हुए। And would you come and preach the word tomorrow Sunday service? हम लोग है ना वो हॉस्पिटल में इकट्ठा होंगे, डॉक्टर्स और प्रोफेसर्स लोग हम लोग इकट्ठा होंगे। क्या आप आकर परमेश्वर का वचन को प्रचार करोगे? Yes, I was worrying very much to just attend the service. मैं केवल है ना रविवार का सभा में हाजिर होना है बोलकर उसके बारे में चिंता कर रहा But था। I got invitation to preach the word among the doctors and professors. पर परमेश्वर ने मुझको ऐसा किया कि डॉक्टर्स को और प्रोफेसर्स को हॉस्पिटल में प्रचार करने के लिए मौका दिया। It is called double dhamaka blessing. वो उसको बोलते हैं कि डबल धमाका आशीष। Amen. आमीन। Double dhamaka blessing. डबल धमाका आशीष। If you ask one, Lord will give the two double. परमेश्वर से आप एक मांगोगे, परमेश्वर 2 देगा। Buy one and get one free. Buy 1 and get 1 free। Hallelujah. हालेलुया। Sunday I went there. और रविवार वहां पर मैं After गया preaching the word, और वचन का प्रचार करने के the बाद presence of God came upon me. परमेश्वर को उपस्थिति मुझ पर आया I was moved by the discerning of the spirits. और मैं आत्माओं का परख में से मैं चलने लगा Spirit of the Lord started revealing about the doctor's sickness. और परमेश्वर का आत्मा डॉक्टर्स का बीमारियों के बारे में मुझको बताना शुरू किया। Then I prayed for the sick doctors. और तब मैं वहां पर बीमार डॉक्टर्स लोगों के लिए प्रार्थना Many किया doctors were healed. और बहुत सारे डॉक्टर्स लोग चंगे हो गए। Glory to God. परमेश्वर का नाम का महिमा हो। God can do anything, right? परमेश्वर कुछ भी कर सकता है। And I went back to the hospital. और मैं हॉस्पिटल में जाने के बाद And Sunday night at 11 o'clock. और रविवार का रात का समय 9 बजे And doctor said that my doctor came and he said that tomorrow you need to get ready for the surgery. और डॉक्टर ने मुझसे कहा कि कल का दिन तुम लोग तो आपको सर्जरी के लिए तैयार होना है After 12 o'clock you must not eat anything. और 12 बजे के बाद तुम्हें कुछ भी नहीं खाना है। You must not take food or water, nothing. आपको खाना नहीं खाना है और पानी भी नहीं पीना है। I said, okay sir, I said. और उन्होंने कहा ठीक है। Do you know पास्टर what- जी ने बोला ठीक है। Do you know what I did? आप जानते हो पास्टर I जी ने raised क्या my किया? both hands like मैंने this दोनों हाथों को ऐसा ऊपर उठाया and looking towards God. और परमेश्वर की ओर देख रहा था। Lord, your word says, परमेश्वर आपका वचन कहता है give thanks for everything. सब बातों के लिए परमेश्वर का धन्यवाद This is the करो। will of God concerning you in Christ Jesus. मसीह यीशु में परमेश्वर का इच्छा यही है। You know how I was thanking the Lord? आप जानते हो कैसा मैं परमेश्वर का धन्यवाद कर रहा था। Thank you, Lord, for this blood vomiting. थैंक यू परमेश्वर, ये खून की मैं उल्टी कर रहा हूँ इसलिए आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, for this tumor. ये घाट के लिए परमेश्वर आपका धन्यवाद। Thank you, Lord, for tomorrow's surgery. और कल का ऑपरेशन के लिए धन्यवाद। Whatever doctor said, Lord, thank you, Jesus. जो कुछ भी डॉक्टर्स ने कहा धन्यवाद यीशु। Thank you, Jesus, for everything. धन्यवाद यीशु सब बातों के लिए। And from 12 o'clock to till morning 4 o'clock, I was awake. और
रात को 12 बजे से सुबह 4 बजे तक मैं जागते ही रहा था। I raised my hands and praising His holy name. और मैं अपने हाथों को ऊपर उठाकर उनके पवित्र नाम का धन्यवाद कर रहा था। I am the servant of the Almighty God. और परमेश्वर का, सर्वशक्तिमान परमेश्वर का I सेवक हूं don't मैं। want to lie anymore. और मैं झूठ नहीं बोलना चाहता हूँ। You know, as I was praying in the presence of God, praising the presence of God, और जैसा मैं परमेश्वर की उपस्थिति में धन्यवाद कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, suddenly I saw something coming from heaven. और अचानक से स्वर्ग से कुछ तो आ रहा था। The hand of the Lord was coming upon me. और परमेश्वर का हाथ मुझ पर आ रहा था। Exactly where was the problem? I was touched by the hand of the Lord. और जहाँ पर मुझको समस्या था, वहीं पर मैं परमेश्वर का हाथ से स्पर्श को पाया। I felt so much free. और मैं बहुत ही आजाद महसूस किया। I received divine healing. और मैंने ईश्वरीय चंगाई को पाया। Next day, Monday, और अगला दिन सोमवार at 2 o'clock, 2 बजे doctors called my name डॉक्टर्स ने मेरा नाम को बुलाया and they took me by the stretcher. और वो लोगों ने स्ट्रेचर पर मुझको And लेकर when गए। they took me to the operation theater, जब वो लोगों ने मुझको ऑपरेशन थिएटर में लेकर doctors गए, wants to do the endoscopy again. डॉक्टर्स है ना फिर से इंडोस्कोपी करना चाहते थे। Before operation, और ऑपरेशन के पहले and they started doing the endoscopy. इंडोस्कोपी फिर से कर रहे थे वो लोग। Doctors asked me to swallow the pipe. और डॉक्टर्स ने बोला कि वो पाइप को अंदर जाने दो, निकल लो। So many times endoscopy. Oh, I was tired of endoscopy. बहुत बार इंडोस्कोपी में थक गया था। इंडोस्कोपी Every time doctors will come and swallow this pipe, swallow this. हमेशा डॉक्टर्स लोग मेरे पास आकर ये मुंह में ये पाइप को मुंह के अंदर ले लो, निगल लो करके बोलते थे। How to swallow that one every time? हमेशा वो कैसा निगल लेता था मैं पाइप को। Because it's not laddu or jalebi. वो लड्डू या जिलेबी नहीं था, It's a plastic pipe. वो प्लास्टिक पाइप था। So many times doctors are troubling me. हमेशा डॉक्टर्स लोग बार मुझको परेशान करते थे। Swallow. वो निगल I was tired of swallowing. और वो बार मुंह में निगलने के लिए मैं थक चुका था। And doctors are preparing for surgery. और डॉक्टर से ना सर्जरी के लिए तैयार कर रहे And थे। before that they put the endoscopy pipe again. और ऑपरेशन के पहले फिर से इंडोस्कोपी पाइप वो लोगों ने I could see on computer all my intestines and blood, everything. और मैं ना कंप्यूटर में ना मेरे सारे अतड़ियों को, खून को देख रहा था मैं। And 2 doctors and 3 professors, they started searching for the tumor actually. और 2 डॉक्टर्स और 3 प्रोफेसर है ना वो घाट को ना ढूंढ रहे थे। 1 minute got over, और 1 मिनट खत्म हो गया, 2 minutes got over, 2 मिनट हो गया, even 3rd minute also they couldn't find tumor in my stomach. और 3 मिनट होने पर भी वो लोग को घाट मेरे पेट में नहीं दिख रहा था। Doctors were surprised. और डॉक्टर्स लोग चकित हो गए। And doctors said, और डॉक्टर्स ने कहा, without taking medicine, without surgery, where it has gone? और दवाई लिए बिना, सर्जरी के बिना वो घाट कहाँ पर गया? I said, that is my Lord Jesus Christ. वो मेरा प्रभु यीशु मसीह है। That's my Jesus. मेरा यीशु है। That is my Jesus. वो मेरा यीशु है। The name of the tumor is और वो नाम का घाट का जो नाम है and plasmacytoma. प्लाज्मा साइटोमा, वो घाट का नाम है। Even today I got that report with me. मेरे पास वो रिपोर्ट आज तक है। I kept it in a Godrej locker गोदरेज लॉकर में मैंने उसको संभाल because I know many people when they heard the testimony, I know that they are belongs to the Thomas generation. और बहुत सारा लोग जब भी मैं गवाही बोलूंगा तो बहुत सारे लोग है ना, थोमा यीशु मसीह का जो चेला था ना, थोमा शक करने वाला, उसके पीढ़ी है इस भारत देश में, मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने ना उसको संभाल कर रखा है रिपोर्ट्स को। Really, is it happened? सच में ऐसा हुआ? Is it true? क्या सच है? They are called the great Thomas, great grandchildren. और वो लोग कौन है मालूम है? बड़े थॉमस जी का क्या बोलते, पोते के पोते हैं। That's why I have preserved my report. इसलिए मैंने वो रिपोर्ट्स को मैंने बचा कर संभाल कर रखा है। Finally, what kind of report I got? आखिर में कौन सा रिपोर्ट मुझको मिला पता Doctor है? report says there is no evidence of plasmacytoma. वहाँ पर वो लोग बोलते हैं कि प्लाज्मा साइटोमा का कुछ भी चिन्ह वहाँ पर नहीं है। Amen. आमेन। Then asked the Lord, और मैंने प्रभु से पूछा, Lord, when I suffered through blood vomiting, जब मैं खून की उल्टी कर मैं जब इतना when I तकलीफ को सह suffered रहा था, because of this tumor, ये
ट्यूमर, ये घाट के वजह से मैं इतना परेशान हुआ। You only healed me, Lord, तूने ही मुझे चंगा किया ना without taking medicine और मेडिसिन लिए बिना and without surgery. और सर्जरी के बिना You perform miracle. आपने अद्भुत कामों को किया। Lord, why you have brought me here to stay in hospital 10 days? और 10 दिन हॉस्पिटल में रहने के लिए तूने मुझे क्यों लेकर आया जब तू चंगा किया तो? Why this is happened to me? ये मेरे लिए क्यों हुआ? You know what Lord said? प्रभु ने क्या कहा पता है? You know what Lord said? प्रभु ने क्या कहा पता है? To understand the people those who are suffering from sickness. और जो लोग है ना बीमारी से पीड़ित है उनको समझ में आने जैसा। That's the reason number one. और वो पहला कारण है। And second reason, और दूसरा to stay closer to me. कि तू मेरे बगल में मेरे पास ही रहे। That's the reason. ये कारण है, दो Bless कारण me, है। bless me. पहला कारण क्या है बोलो तो बीमारी से पीड़ित लोगों का दर्द तू समझ सके, और दूसरा कारण है कि तू मेरे साथ में ही रहे, मेरे पास ही रहे। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। That's the reason wherever I travel, और जब भी मैं जहाँ कहीं भी यात्रा wherever करता I हूँ, travel in the world, दुनिया में मैं कहीं पर भी जाता हूँ when तो I see the sick people, जब भी मैं बीमार लोगों को देखता I हूँ feel always like this, as if I have got the sickness. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये बीमारी मुझको है। Lord is performing the wonders. परमेश्वर अद्भुत कामों को करता है। Wherever I go and preach the word of God, जहाँ कहीं भी मैं जाकर परमेश्वर का वचन का प्रचार करता हूँ signs and wonders began to follow me. और चिन्ह चमत्कार मेरे पीछे करते हैं। God is performing amazing miracles. परमेश्वर आश्चर्य कामों को कर रहा है। I pray for the blind people. मैं अंधे लोगों के लिए I प्रार्थना used करता to हूँ। pray for the dumb and deaf. मैं गूंगे और बहरे लोगों के लिए प्रार्थना करता हूँ। I want to glorify the name of the Lord. पर मैं परमेश्वर का नाम का महिमा करना चाहता To हूँ। cut short the story, कहानी को मैं कम करने के लिए God has given the power and authority to rise two dead bodies. परमेश्वर ने मुझको वो शक्ति और अधिकार दिया कि 2 मृतक लोगों को जिलाने के लिए। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। I tell you the truth, मैं सच कहता हूँ, God who is using me, जो परमेश्वर मुझे इस्तेमाल कर रहा है He can use you people वो also. आप लोगों को भी इस्तेमाल करेगा। The power of God is same. परमेश्वर का जो परमेश्वर में है वो शक्ति। Hebrews chapter 13 verse 8. और इब्रानियों का पत्री 13वां अध्याय 8वां वचन। The Lord Jesus Christ yesterday, today and forever is same. और यीशु मसीह कल आज और युगानुयुग एक समान है। People may change. और लोग बदल सकते हैं, Circumstances may change. परिस्थितियां बदल सकते हैं Situations may change. और परिस्थितियां बदल सकते हैं। But there is only one thing who changeth not. और एक है जो कभी बदलता नहीं। There is only one person who changeth एक not. व्यक्ति है जो कभी बदलता नहीं। He is none other than our Lord Jesus वो Christ. कोई दूसरा नहीं, हमारा प्रभु यीशु मसीह He है। is always same. वो हमेशा एक समान है। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का The धन्यवाद Lord हो। who has saved me, जो परमेश्वर मेरा उद्धार किया He will save वो you. आपका उद्धार The करे। Lord who has healed me, जो परमेश्वर ने मुझे चंगा He किया will heal you. आपको चंगा करेगा। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। I'm sorry that I could not complete the topic. मैं पूरा संदेश को मैं पूरा नहीं कर पाया, I do not know. I was led by the Holy Spirit to share my testimony. पर मैं संदेश को बोलना चाहता था, पर पवित्र आत्मा ने मेरी अगुवाई की कि मेरी गवाही को मैं Knowing बांटूं। that obedience is better than sacrifice. क्योंकि मैं जानता हूँ कि आज्ञाकारी बनना ये बलिदान से भी उत्तम है बोलकर। And certainly God is going to increase you. और निश्चय रीति से परमेश्वर आपको बढ़ाएगा End should greatly increase. और अंत में आपकी बढ़ती बहुत होगी। You are going to see the great increase. आप है ना बड़ा बढ़ोतरी को देखोगे। Take it as a prophecy in Jesus' name. ये यीशु मसीह के नाम में भविष्यवाणी को ले लो। May the good God bless this message. और भला यीशु मसीह आपको आशीष करे, इस संदेश को आशीष करे In Jesus' name. यीशु के नाम में। Amen. आमेन। Let us pray. प्रार्थना करेंगे, सब लोग खड़े हो जाएंगे, प्रार्थना करेंगे। प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Blessed धन्यवाद। be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। Hallelujah. Thank you, Jesus. धन्यवाद हो, Thank you, Lord. धन्यवाद हो प्रभु। Spirit of the Lord says here, परमेश्वर का आत्मा कह रहा है यहाँ 4 पर, people are in our midst. हमारे बीच में 4 लोग हैं। 4 people are there. यहाँ पर 4 लोग हैं। They are suffering from high palpitation, high heart palpitation. वो लोग है ना हाई हार्ट पर्पुलेशन, Yeah, high heart beating. हाँ, जो दिल का धड़कन है बहुत तेज होता है। 4 लोग हैं यहाँ And पर। they used to get the bad dreams वो लोग को ना गंदे सपने आते हैं and no proper appetite.
और सही तरह से उनको हजम नहीं होता है। And like that, 4 people are here. ऐसा 4 लोग यहाँ पर है। God is going to heal them. परमेश्वर उनको चंगा करेगा। If you have such a problem, why don't you raise your hand? ऐसा समस्या आपको है तो आप लोग कृपया करके हाथ उठाकर You दिखाइए। used to get the bad dreams, आपको ना गंदे सपने आते हैं and your hands and legs used to pull like anything. और आपके हाथ और पैर है ना खींचते हैं No proper appetite. और आपको सही तरह से खाना हजम नहीं Can होता I है। see your hands, please? आपका हाथ ऊपर उठाकर दिखाओगे। Hallelujah. Keep हालेलुया। your hands like that only. उसी तरह से आप आपका हाथ ऊपर ही रखिए। The Spirit of the Lord is saying, प्रभु का आत्मा कह रहा and है। one more person is here. यहाँ पर और एक व्यक्ति है। Whether the person sleeps or awake, वो व्यक्ति अगर सो रहा है या फिर जाग रहा है, and every time that person used to see the serpent, वो हमेशा है ना एक सांप को देखते रहता है and God is going to give the deliverance. और परमेश्वर उसको ना छुटकारा देगा। Even in the dreams, the person used to see the serpent snake. वो सपने में भी सांप को देखता है। Who is that person? Raise your hand. वो व्यक्ति कौन है? हाथ ऊपर उठाकर देखो। I would like to pray for the person. वो व्यक्ति के लिए मैं प्रार्थना करना चाहता And हूँ। one more person is here. यहाँ पर और एक व्यक्ति है When the person fell, no, that the person's bone has broken. और उनका हड्डी है ना टूटा हुआ है हाथ में, Even after going to hospital, और हॉस्पिटल जाने के बाद भी, even after many days, और बहुत सारे दिनों के बाद भी, still that person is getting pain in that place. ये कंधे में ना उसको हाथ में दर्द है, कंधे में दर्द है। Who is that person? वो व्यक्ति कौन है? Raise your hand. आपका हाथ को ऊपर। Blessed be the name of the Lord. परमेश्वर का नाम का धन्यवाद हो। I know, I may not know anything. मैं कुछ भी नहीं जानता हूँ। Spirit of the Lord knows everything. परमेश्वर का आत्मा सब कुछ जानता है। When Jesus met Zacchaeus, जब यीशु जकरिया से मिला, Jesus never met Zacchaeus. यीशु उसके पहला कभी मिला नहीं था But जकरिया। when Jesus looked at Zacchaeus, जब जक्कई से जब यीशु my Lord, he was called by his name. और प्रभु ने उनको नाम लेकर बुलाया। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम का धन्यवाद हो। And one more person is here. यहाँ पर और एक व्यक्ति है Because of financial crisis, और आर्थिक समस्या की वजह से, because of problems in the family, और परिवार में समस्या की वजह that से, person many times used to get the inspiration to commit suicide. और वो व्यक्ति को कई बार ऐसा प्रेरणा आता है कि आत्महत्या कर लो, That's from the devil. और वो दुष्ट आत्मा से है। Lord will give you peace. परमेश्वर आपको शांति देगा। Let me pray for you. आपके लिए प्रार्थना करने दो Who is मुझे। that person? वो व्यक्ति कौन है? In the name of Jesus, यीशु के नाम में I want to pray for you. मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता You हूँ। must not commit the suicide. आप आत्महत्या नहीं करना चाहिए। The presence of God is coming upon you. परमेश्वर का उपस्थिति आपके ऊपर आ रहा है। Receive anointing. आत्मा अभिषेक को पाओ Receive healing. और चंगाई को पाओ In the name of Jesus. यीशु के नाम में, In the mighty name of Jesus. यीशु के सामर्थ्य नाम में। And one more person is here. यहाँ पर और एक व्यक्ति है, And you know, the person is having partial deafness. वो व्यक्ति को ना एक बाजू में सुनाई नहीं देता है। Who is that person? वो व्यक्ति कौन है? One ear is okay, एक कान अच्छा है other is having partial deafness. और दूसरा जो कान है उसमें ना ज्यादा सुनाई नहीं देता पर थोड़ा सुनाई देता है। Raise your hand. I would like to pray for you. आपका हाथ को ऊपर उठा है, आपके लिए मैं प्रार्थना करना चाहता हूँ। Amen. आमीन। You know, you don't wait for me to lay my hands upon you. मेरा हाथ आपके ऊपर रखने के लिए आप इंतजार मत When the करो। Spirit of the Lord is revealing about your sickness, जब प्रभु का आत्मा आपका बीमारी के बारे में प्रकट कर रहा है, already you have received healing. आप सब लोग है ना चंगाई को पाएंगे। Already you have received healing. आप पहले से चंगाई को पा चुके हो There is no distance for God's anointing. और परमेश्वर का अभिषेक के लिए वहाँ पर कुछ भाग नहीं है। वहाँ The presence of God is here. परमेश्वर का आत्मा यहाँ पर है। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Lord. धन्यवाद प्रभु। Hallelujah. हालेलुया। Every kind of infections in the name of Jesus. और सब प्रकार का इन्फेक्शन यीशु के नाम में, Every kind of sickness in the name of और Jesus. सब प्रकार का बीमारी यीशु के नाम में, Every kind of infirmities in the name of Jesus. सारा कमजोरियां यीशु के नाम में, From crown of the head to bottom of the toes. और सिर से लेकर पैरों के तले तक Be healed right now in Jesus' name. यीशु के नाम में अभी चंगे हो जाओ। The presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। Receive healing. अभी पाओ चंगाई को, Receive healing. अभी चंगाई को प्राप्त करो In the name of Jesus. यीशु के नाम में। Every kind of bad dreams. और सारे गंदे सपने Every kind of pain and infirmity. और सब कुछ कमजोरियां Be healed right now in Jesus' और name. सारे कमजोरियां चंगाई हो यीशु के नाम में। Thank you, Lord, for healing your
your people. थैंक यू प्रभु आपका लोगों को चंगा करने के लिए। Thank you for the descending of the Holy Spirit. और पवित्र आत्मा आप उतर आए इसलिए आपका धन्यवाद। Father, we praise thee and thank thee. और पिता परमेश्वर आपका धन्यवाद करते स्तुति Thank करते you, हैं। Lord. You have been honoring your word, Lord. और प्रभु आपका वचन का आप आदर कर रहे हो, आपका Even धन्यवाद। today, thank you, Lord, for honoring your word, Master. और आज भी परमेश्वर आपका वचन का आदर कर रहे हो, आपका धन्यवाद। Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु, Thank you, Jesus. धन्यवाद यीशु। People are healed, Master. और पिता परमेश्वर लोग चंगे हो गए हैं। And some people may be thinking like this. और कुछ लोग इस तरह से सोचते Why होंगे, Lord is not revealing my problem? और क्यों प्रभु मेरा समस्या को बोल रहा नहीं? Whether it may be revealed or not. यदि परमेश्वर वो बोले या ना बोले, God knows all your problems. परमेश्वर जानता है आपके सारे समस्याओं को। God knows all your infirmities. परमेश्वर आपके सारे कमजोरियों को जानता He है। will heal you. वो जरूर आपको चंगा The करेगा। healing power is here. और चंगाई का सामर्थ्य यहाँ The पर है। healing power is here. चंगाई का सामर्थ्य यहाँ The पर है। presence of God is here. परमेश्वर की उपस्थिति यहाँ पर है। हालेलुया, हालेलुया। Thank you, Lord, for the visitation of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा परमेश्वर आप हमसे मिले, मुलाकात किए, Let धन्यवाद। your children be healed right now. अब भी आपके बच्चे लोग चंगे हो जाएं। Thank you, Lord. धन्यवाद Thank you, यीशु, Jesus. धन्यवाद यीशु। Thank you, Lord, for a wonderful presence. आपका अद्भुत उपस्थिति के लिए धन्यवाद। Amen. आमीन।